Hello everyone, and again welcome back to my YouTube channel. This is Alok Pandey, and today I'm shooting my new podcast with our amazing guest Palak Avasthi ma'am. She is software engineer at PayPal. So welcome ma'am to my podcast. Thank you. Shall I Yeah, start? yeah ma'am, you can please Introduction? introduce yourself to my viewers. Okay, so my name is Palak Avasthi. Currently, I'm working in PayPal. Before PayPal, I also worked with companies like Qualcomm and Nokia. Apart from this, I am also among the top 100 influential women of India in Fox Story India. So yeah, that's all about me. Okay, thank you so much ma'am. So ma'am, coming to my first question, ma'am, like how was your school days? Okay, जो मैं in सारे अपने पॉडकास्ट में पूछता हूँ. Okay, so like in school, I was kind of a studious student. I was the one who used to sit in the first bench. I was like favorite student of my all the teachers. So yeah, I was kind of studious and boring student maybe. So thank you so much, ma'am, for giving your insights from your school days. So I'm like, you are coming from which college? Please tell Okay, me. I did my bachelor's from Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha. It's a government college in Madhya Pradesh. Yeah, so we can say it's a tier 3 college. And after that, I did master's immediately from Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad. Ma'am, you are from Madhya Pradesh. Yeah, I'm from MP. I'm also from MP. Oh, wow. Okay, nice. So, ma'am, like, how you get into PayPal? Can you please share? Okay. So, when I was in Qualcomm, so we were working on very good project. I was very settled. I was in a bit comfortable zone there. But I want to explore more like tools and technologies. I was working on a limited tools, like limited tech stack was there because C Sharp and WPF, that was it we were working on. So I want to explore the things. So that's why I started applying. I got even selected in many companies, like 5 to 6 companies I got selected. But then I selected, but I then choose this PayPal because it was near my house when where I'm living. And also because it was in Hyderabad only. Other jobs were few were in Delhi and few were in Bangalore, which I got. So that's why I chose this PayPal. And also the PayPal, the work which they told, like it looks interesting because they were telling that we'll be working on the projects include AI, ML, Gen AI, and all the good things, and even the big data. So yeah, so that actually make me feel more interested about that project, and I joined that PayPal. Okay. So, ma'am, like, which is your main programming language? Okay, I have a vast thing for this. I did competitive coding in C++ only from starting, and then in Nokia I worked in C++ only. Then I joined Qualcomm. I worked in C Sharp and WPF. I worked there, and then in PayPal we are working in Java and Python. So all the languages. Okay, so I'm I like, use. मैंने एक तो रील में देखा था और शायद संदीप जैन सर के ट्वीट में देखा था कि लाइक जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो गिरगिट के जैसे होते हैं, रंग बदलते हैं, कभी भी अपनी कोडिंग लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं. या बट मेरी फेवरेट C++ है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मतलब उसी से कोडिंग चालू करी थी, सो दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट. सो मैम, लाइक आप अपने टाइम में मैम डीएसए कहाँ से कर रहे थे? ओके, तो मैंने मतलब मैं सच बताती हूँ कि मैंने कॉलेज में बीटेक में बिल्कुल कुछ नहीं करा था डीएसए वगैरह. मैं मतलब हमें नहीं पता था यार. हमारे कॉलेज में बस था कि नंबर लाना है, मार्क्स लाना है, एंड उसके लिए हम लोग पढ़ाई करते थे. कोडिंग थोड़ा बहुत जितना कॉलेज वाले बोलते थे उतना करते. वहाँ पे माहौल ही नहीं था, पता ही नहीं था हमें कि बाहर चल के आ रहा है दुनिया में. ना हम लोग, इवन आई वाज नॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन, तो मुझे कुछ नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है. इवन ऑफ कैंपस के बारे में तो पता ही नहीं था कि ऑफ कैंपस में भी अप्लाई कैसे कर सकते हैं. तो उस टाइम पे कुछ नहीं पता था. बट जब मैंने, इसलिए मैंने गेट चूज किया था क्योंकि मुझे पता था कि लाइक मुझे वहाँ पे जो 3 to 5 लाख का पैकेज लग गया था 2-3 कंपनी में, बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि वो समथिंग वाज एक वेरी लेस व्हेन यू कम टू बिग सिटीज, राइट, हैदराबाद, बैंगलोर. तो इसलिए मैंने वो चूज नहीं किया. देन इमीडिएटली मैंने गेट की प्रिपरेशन करके आफ्टर लाइक 2019 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ. इमीडिएटली मैंने एमटेक के लिए ज्वाइन कर लिया था एनआईटी इलाहाबाद. एंड वहां पे जो मैंने मतलब कल्चर देखा भाई, मतलब पीपल वाज डूइंग कोडिंग लाइक हेल. दे वर सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर लेट नाइट्स एंड दे वर डूइंग कोडिंग. तो व्हेन आई सॉ दैट एनवायरनमेंट, नो, देन दैट एक्चुअली मोटिवेटेड मी कि दे कैन डू, आई कैन ऑल्सो डू. बिकॉज like when you see many people are doing the same thing, so that actually make you feel like why Palak, why you can't do that. So I started coding, and I started with lead code. I checked Aditya Verma channel, Striver series, and there are few like Love Babbar also. I used to check few videos of that. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच मैम. सो मैम, लाइक एज यू टॉक्ड अबाउट लिंक्डइन, एंड मैम जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ
कि मैम जो हमारी कैंपस में आई थी वो वाओ पंजाब का सेशन के लिए एज अ स्पीकर। सो मैम लाइक मैंने आपको कल सुना था इन SDM में इन आर ऑडिटोरियम में हम लोग लाइक उसमें आपने एक क्वेश्चन किया था, मैंने उसका रिप्लाई भी किया था जो कि गलत था कि लाइक सेल्फ ब्रांडिंग कैसे होती है, सेल्फ ब्रांडिंग क्या होती है, खुद को ब्रांड कैसे बनाएं। एग्जैक्टली। मैम प्लीज अभी आप इसको प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अच्छा, तो देखो पर्सनल ब्रांड जो होता है ना, आपको प्रोफेशनली लाइक कैसे रिप्रेजेंट करना है वो शो करता है लाइक पर्सनल ब्रांड। तो जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मेरा कोर क्या है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मेरे में कोर में मेरी पर्सनल ब्रांडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होंगी। और मेरा अदर थिंग क्या है कि मेरे पास पेपाल का टैग है, मतलब कोई एक कंपनी का टैग है, राइट, तो वो मेरी एक पर्सनल ब्रांडिंग, बट वो मैं यूज कर सकती हूँ फॉर लाइक पर्सनल ब्रांडिंग, बट नॉट एज इन जनरल मैं यूज नहीं कर सकती, क्योंकि सम कंपनी लाइक वी माइट नॉट स्टे फॉर एवर इन अ कंपनी, राइट, so एग्जैक्टली। that's not our thing, but that software engineer tag is mine because that I am doing from starting, and वो तो मैं हर जगह कोई भी कंपनी में जाऊँ या कुछ भी करूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं हूँ ही ना, यस मैंने मैम। इंजीनियरिंग करी, तो दैट्स माय टैग, दैट्स माय पर्सनल ब्रांडिंग विच आई कैन स्टार्ट ऑन। तो मैंने उसी से स्टार्ट किया, लाइक आई स्टार्टेड शेयरिंग ऑन लिंक्डइन कि कैसे बने, कैसे प्रिपेयर करे, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, व्हाट नॉट, क्योंकि लोग बहुत मिस्टेक्स भी करते हैं। मैं इवन प्रेफर करती हूँ कि क्या नहीं करना है वो ज़्यादा बताओ लिंक्डइन पे, कि क्या करना है, क्या करना है बताने वाले बहुत सारे हैं यस मैम। यूट्यूब पे, पर क्या नहीं करना है वो बताने वाला कोई नहीं है। तो आई यूजुअली प्रेफर दैट थिंग, एंड या सो दैट इज व्हाट आई एक्चुअली शेयर ऑन माई लिंक्डइन, सो या। सो मैम लाइक ये तो आपने अपने बारे में बता दिया। सो हम लाइक हम लोग के लिए जैसे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो मैम हम लोग अपने आप को सेल्फ ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, अपना USP ओके, कैसे बना सकते हैं। देखो तुम जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक स्टूडेंट हो अभी, ठीक है, तुम्हारे पास कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज है, मान लो नॉट इवन लैंग्वेज, तुम्हें जेएनआई बहुत अच्छे से आता है, यस ठीक मैम। है, तुम उसको यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुके हो, तो तुम्हें वो पर्टिकुलर चीज है जो है वो शेयर करनी स्टार्ट कर, तुम्हें मतलब एक्चुअली ऐसा होता है ना कि तुम बोल बोल के सबको बता रहे हो कि मुझे आता है, तुम्हें आता है, ये तुम्हें पता है, राइट, यस मैम। पर तुम जब बोल बोल के सबको बताओगे, वो किसी और को बताएंगे, तो उससे सबको पता चलेगा कि तुम्हें आता है, राइट। यस मैम। सो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू डू एज अ कॉलेज स्टूडेंट, कि मुझे आता है बट नो बडी नोस, रिक्रूटर्स को नहीं पता है कि तुम्हें आता है, तुम्हारे जैसे हजार लोग हैं, यस मैम। तो तुम्हें बताना पड़ेगा ये, तो ये कैसे बताओगे, पोस्ट शेयर करके, पोस्ट करके राइट, प्रोजेक्ट्स बना करके। प्रोजेक्ट्स बना के उस पर्टिकुलर जेएनआई से कुछ प्रोजेक्ट बना लिया, कुछ जैसे जैसे कल हमने वेदर ऐप देखा, राइट, यस मैम। वैसे एक कुछ ऐप बना लिया और वो तुम उसको शेयर कर रहे हो कि तुमने कैसे बनाया, और फिर वो तुम जो है तुम्हारा शेयर जो है कई लोग लाइक करेंगे, कई लोग कमेंट करेंगे, तो उससे जो है उनके नेटवर्क पे भी जाएगा, तो मतलब तुमने ये बोला तुम्हारे नेटवर्क से, बट तुम्हारे नेटवर्क ने ये बात बोली उनके नेटवर्क से, लाइक करके कमेंट करके, यस तो मैम। नाउ एवरीवन विल नो कि तुम जेएनआई तुम्हें आता है एंड तुमने प्रोजेक्ट बनाया उसमें। ओके। सो हम लाइक थोड़ा सा और कंट्रोवर्सी करते हैं मैम इस ओके, पॉडकास्ट को। मैम डेविन के बारे में बात करते हैं, वो डेविन, क्या है। यार देखो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी डेविन के बारे में। डेविन के बारे में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखो यार अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर मैं कुछ पॉजिटिव बोल दूंगी तो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नेगेटिव बोलूंगी तो भी हो जाएगा, ओके मैम। सो तो हम लाइक ये जो है डेविन लाइक आप प्रोफेशनल हो, थोड़ी सी नॉलेज, मैं अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बोलूंगा, बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, बट मैम जिसको एक भी नॉलेज नहीं है वो डेविन क्या है थोड़ा आप उनको बस बता दो कि डेविन क्या है, वो कैसे आ रहा ओके, है। तो बेसिकली मतलब हम लोग की मतलब ऐसा आजकल चल गया है कि भाई लोगों को लग रहा है कि जॉब चली जाएंगी, डेविन एआई आ गया और देविका समथिंग, राइट, ऐसा कुछ कुछ यस मैम। सुनने में आ रहा है। तो यार देखो, मैंने कल भी वही एग्जांपल दिया था कि कुछ भी एक चीज आती है तो दूसरी चीजें मतलब एक जॉब जाती है तो नई टाइप की जॉब्स बनने लग जाती है, तो डेविन एआई टाइप के जो बन रहे हैं ना, वो हमारे हेल्प के लिए है, कि दैट विल हेल्प अस टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ कि मुझे पर्टिकुलर चीज ऑटोमेट करनी है, इवन लाइक आई और एनी वन लाइक वी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑल्सो, हम लोग यूज कर लेते हैं कई बार कि चैट जीपीटी यूज कर लिया या कुछ यूज कर लिया, कई बार ऐसा होता है ना कुछ चीजें पे स्टक हो जाते हैं, अभी गूगल पे तो नहीं जाके देखेंगे ना क्योंकि वो इतनी सारी चीजें दे देगा, तो चैट जीपीटी की हेल्प से लेके हम उस चीज को जो हमें 10 मिनट में हमारा एरर सॉल्व हो रहा था वो मेरा 2 मिनट में सॉल्व हो गया, राइट। यस मैम। तो वही एक चीज है कि हमारी हेल्प के लिए ही बनाया गया है वो, ठीक है, यस मैम। उससे हमारी हेल्प होंगी इंजीनियर्स की, मान लो 5 इंजीनियर्स पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अभी 2 करेंगे क्योंकि वो 2 कर पा रहे उसकी डेविन की हेल्प से। यस आई मैम। एम नॉट सेइंग कि वो 3 इंजीनियर्स की जॉब जाने वाली, आई एम नॉट सेइंग दैट। ओके मैम। सो मैम लाइक जो चैट जीपीटी भी आया हम लोग का, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लाइक जैसे हम लोग अभी लास्ट ईयर ही आया था, तो लाइक इसके पहले क्या होता था कि हम लोग अपना जो भी हम लोग असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स मिलते थे कॉलेज से हम लोग खुद से करते थे, बट ओके, जैसे कि चैट जीपीटी आ गया तो डायरेक्ट ओके गिव मी दिस आंसर,
ओके गिव मी दिस आंसर। सो मैम इससे हम लोग का लॉस भी तो हो रहा है ना, लाइक मैम हम लोग पढ़ नहीं रहे, कोड कर नहीं रहे हैं, बस हम लोग ओके चैट जीपीटी से मांग रहे हैं। ओके, तो देखो ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो तो खुद से ही बनाना चाहिए। तुम ठीक है, अगर तुम कहीं स्टक कर गए तुम खुद से ट्राई करो। अगर स्टक कर गए हो कि भाई एरर आ जा रहा है, अभी तुम पहले तो ट्राई करो डिबग करने का खुद से। यस मैम। नहीं हो रहा है तो हेल्प लो, इट्स ओके टू टेक हेल्प। यस पर मैम। जब तुम हेल्प ले रहे हो तो तुम उसको याद रखना कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आए तो फिर उसमें तुम्हें हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, वो तुम खुद से ही सॉल्व कर सको। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा काम हमारा चैट जीपीटी चैट का, जीपीटी क्योंकि फिर तो वो हमारी जॉब खा जाएगा पे। ना। यस मैम। हमें भी और हमें मैम हम उसको लोग अपना फ्रेंड बना के खुद रखना से है। उसको खाने हाँ, दे हम रहे दे रहे हैं उसे हैं। यस खाने, मैम। तो ऐसा नहीं करना है हमें। लाइक उसे अपना फ्रेंड बनाना है, उससे अपनी हेल्प करवानी, ना कि उससे अपना पूरा काम करवाना है। यस मैम। तो एक जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि पहले के जमाने में क्या होता था कि वो डोर पे मतलब ऐसे होते थे ना, लोग बाग खड़े होते थे बेल बजाने के लिए, जब मॉर्निंग में मतलब अलार्म वगैरह तो कुछ होता नहीं था। यस तो मैम। बेल बजाने के लिए खड़े होते थे और सुबह से उठा देते थे लोगों को। बड़े बड़े घरों में ऐसा होता था। यस मैम। फिर उसके बाद अलार्म क्लॉक का इन्वेंशन आया। तो ऐसा हुआ ना कि अब जो डोर बजाने वाले लोग थे उनकी मतलब वो लोग की जॉब अब नीडेड नहीं थी। बट उसके साथ जो अलार्म क्लॉक बनाने वाले लोग हैं मैन्युफैक्चरर, उनकी जॉब आ गई। एग्जैक्टली। राइट, तो अगर एक जॉब जा रही है तो दूसरी जॉब आने वाली है। तो जैसे अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चल गया, मे बी एसडी जॉब्स टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा, कुछ मे बी कुछ नई जॉब्स आ जाएंगी। पर देखो अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे सीखना, मतलब हम सीखते रहेंगे कुछ ना, जो भी आ रहा नया सीखते रहेंगे, यस मैम। तो हमारी जॉब कभी नहीं जाने वाली है, वी आर सेफ। एग्जैक्टली मैं यही मतलब इसका कंक्लूजन बोलने वाला था। ओके। लाइक कुछ भी तो आ रहा है जिसको हाँ, आने दो, अपने को लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखना या चाहिए। करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आई शुड नॉट यूज द नेम ऑफ द कंपनी बट इट्स ओके। नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं यूज, मतलब एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट? यस मैम। इनिशियली तो इनिशियली फर्स्टली हमारा नोकिया जो था सबसे बेस्ट कंपनी था, मतलब हम लोग बचपन में वही मोबाइल यूज करते थे और सब कुछ था। एंड्रॉयड आया बट दे डिडंट एक्सेप्टेड दैट। तो फिर वो थोड़ा सा लॉस में चले गया, मतलब थोड़ा बैक फुट हो गया था, राइट? यस मैम। तो एग्जैक्टली। ऐसे ही हमें भी अगर कुछ नई चीज आ रही है तो उसको अपना मतलब फ्रेंड बना के उससे मतलब काम निकलवाना है, उसको सीखना है वो चीज को। यस मैम। तो तभी हमारा मतलब हम आगे और अच्छा कर पाएंगे। ओके थैंक यू सो मच मैम। सो मैम लाइक एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में। मैम लाइक जैसे सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स रहते हैं, थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो मैम उनको इमीडिएटली कॉलेज वाले बोलते हैं इंटर्नशिप करने के लिए 2 मंथ्स की। सो मैम वो कहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ओके, तो कौन कौन देखो सी कंपनीज जो है 2 मंथ की इंटर्नशिप प्रोवाइड ये करती बहुत है? सारे, इवन माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेपाल में भी कई लोग आते हैं, कॉलकॉम में भी आते थे। तो लाइक देयर आर मेनी कंपनीज जो प्रोवाइड करती है इंटर्नशिप 2 मंथ की। मतलब एग्जैक्टली मैं अभी लिस्ट तो नहीं बता सकती एक्सक्लूसिवली, बट या इवन आई शेयर ऑन माई लिंक्डइन। मतलब मैं मोस्टली वीक मतलब वीकली 2-3 पोस्ट तो डाल ही देती हूँ ओपनिंग्स की। और इंटर्नशिप मैं प्रेफर करती हूँ कि फ्रेशर्स की जॉब ही डालूँ, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा इजी है जॉब स्विच करना, बट फ्रेशर्स के लिए जो फर्स्ट जॉब होती है वो थोड़ी टफ होती है ऑफ कैंपस। यस तो मैम। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ डालना। सो यू कैन चेक देयर कि कौन सी इंटर्नशिप है और कैसे करना है अप्लाई। फॉर दैट रेज्यूमे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेटवर्क होना चाहिए अच्छा। जैसे तुम अभी मुझसे मिले, ठीक है, अब कल को पेपर में कुछ ओपनिंग आई तो तुम मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करके बोल सकते हो कि हाँ मैम मुझे इस पे रेफर कर दो, राइट? यस या मैम। फिर तुम किसी और पर्टिकुलर कंपनी, मतलब ऐसे एक नेटवर्किंग बना लोगे ना, तो आपको इट विल बिकम वेरी इजी टू आस्क देम रेफर, क्योंकि अब मैं तुम्हें जानने लगी हूँ, राइट? यस मैम। सो दैट इज द थिंग, यू हैव टू मेक अ गुड नेटवर्क जो आपकी हेल्प कर सके और मे बी इन फ्यूचर आप उनकी हेल्प कर सको। थैंक यू मैम। सो मैम आप मेरे को रेफरल दे दोगे फ्यूचर में इफ आई एम एलिजिबल? या ओके श्योर। सो मैम लाइक एक और क्वेश्चन, लाइक अगर आपके पास टाइम लिमिट हो तो सो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो मैम ये रेफरल क्या होता है, आप प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। बहुत लोगों ओके को नहीं पता होता कि रेफरल होता क्या है, कैसे मांगते हैं, क्यों मांगते हैं। ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो पहले तो ऐसा होता है कि जब आप कोई भी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करो, मैं एक मतलब एक फर्स्ट एक ए है एक बी है, ठीक है। ए ने अप्लाई किया विथ रेफरल और बी ने अप्लाई किया विदाउट रेफरल। अब रेफरल क्या है? रेफरल मतलब कि वो एक एम्प्लॉय जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है उस कंपनी में, वो आपको रेफर करेगा कि ये जो ए कैंडिडेट है, मैं इसको जानता हूँ और ये जो है इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए फिट है। तो हम लोग के पास ऑप्शन आता है जब हम रेफर करते हैं किसी को कि ये एलिजिबल है कि नहीं, ये फिट है कि नहीं इस जॉब रोल के लिए। तो अगर हम लोग यस टिक करते हैं देन रेफर करते हैं। तो अगर हमने वो रेफर कर दिया तो वो आपके पास जाएगा एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन दैट। अब तुम उससे अगर अप्लाई कर रहे हो तो उससे ये फायदा होगा कि मोस्टली जो
70% सिलेक्शन होता है जब एक रिक्रूटर सिलेक्ट करते हैं रेज्यूमेस, तो वो जो रेफरल, जो ऑब्वियसली मेरी कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, मुझ पे मेरी कंपनी वाले ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, राइट, कि मैंने किसी को रेफर किया है तो वो ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट होगा, ऐसा होता है, तो वो दे ट्रस्ट मी, राइट, तो दैट्स वाई दे प्रिफर दैट कैंडिडेट हु इज रिफर्ड कंपेयर टू द वन हु हैज डायरेक्टली अप्लाइड. So that is the thing, when you apply with referral तो 70% chances रहते हैं सिलेक्शन के. अगर विदाउट रेफरल कर रहे हो तो चांसेस कम हो जाते हैं, इट बिकम्स ओनली 30%. और अगर आपका रिज्यूमे बहुत परफेक्ट बना है देन इट विल पास द ATS एंड देन इट विल गो टू द रिक्रूटर. Okay, thank you so much, ma'am. So this was all about our podcast, and thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. मैम, मैं लास्ट क्वेश्चन जो मैं सारे पॉडकास्ट में पूछता हूँ, लाइक मैम आप मुझे कोई टिप देना चाहती हो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और मैं क्या इम्प्रूव करूँ Okay. अपने आप में? Yeah, you're doing very good thing. You started like मैं सोचती हूँ कि मैंने ही कॉलेज में स्टार्ट कर दिया होता तो मजा आता यूट्यूब वगैरह पे, बट इट्स वेरी गुड थिंग. साइड बाय साइड करो, बट अपना पढ़ाई एंड स्टडी मत छोड़ो. बिल्कुल. कंपैरेटिवली लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह जो है वो भी सब करते रहो, Yes, ma'am. एंड या इसको साइड में लेके चलो. मे बी जब बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए तो जॉब वॉब छोड़ के फिर इसी में लग जाना. बट इनिशियल फेजेस में जॉब पे फोकस करो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो, DSA करो एंड सब करो. Okay, thank you so much, एंड ma'am. ऑल्सो एंजॉय करो लास्ट में. कॉलेज लाइफ बहुत मिस करते हैं क्योंकि बाद में. यस मैम. सो मैम, लाइक मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, और मैम आपके पास बहुत ज़्यादा मैम नॉलेज भी है उसको शेयर करने के लिए. सो मैम, अगर हमको फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा तो फॉर श्योर विल शूट पॉडकास्ट विथ योर परमिशन. या श्योर श्योर. और अगर व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगा तो हम लोग ऑनलाइन भी कर लेंगे. या श्योर. ओके, थैंक यू सो मच मैम. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट गाइस. सो मैं आप मैम का जो लिंक्डइन का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पॉडकास्ट के. सो मैम को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हो, मैम से कनेक्शन बनाओ और जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट, एंड जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी कम्युनिटीज के साथ शेयर करो. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू एवरीवन.